السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. So I'm very excited, Alhamdulillah, to share about it. And today's session is not the session that we talk on a specific topic, but inshallah today I'm going to share about this channel. इंशाल्लाह छोटी सी एक क्लिप है ये, जिसमें मैं इंशाल्लाह आपको इस चैनल से मुखातब कराऊंगा और मैं अपने आप का एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके सामने पेश करूंगा, ताकि you as a viewer of this channel have an idea that what you are going to see in the upcoming days on this channel inshallah. सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह sharing this on this platform, introducing myself as one of the student of knowledge. So मेरी इंट्रोडक्शन ये है कि मेरा नाम वली रहमान इब्न तुराब अली इब्न बिलाल हुसैन है और we belong to a very middle class family in West Bengal, but later on my father Sheikh Turab Ali Rahmani, he shifted to Bihar, and now we live in Bihar, India. In terms of my educational background, alhamdulillah, मेरी सबसे पहली जो तालीम हुई वो मकातिब से शुरू हुई, मुझे ज़्यादा याद नहीं है, और इसके बाद कुछ साल मुझे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। इट वॉज अ प्राइमरी स्कूल जो कि गांव में होता है, आप जानते हैं। बेसिकली हम गांव देहात के रहने वाले लोगों में से हैं, और इसके बाद फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौफीक दी, जो कि अमंग द टीचर्स एंड द स्कॉलर्स, जबकि हम मदरसे की तरफ रुख किए। अल्हम्दुलिल्लाह एट द एज ऑफ 15 आई बिकेम एन हाफिज़, एंड उसके बाद फिर मैंने एक मदरसे में पढ़ाई करना शुरू किया, जो कि है जामियतुल कुरान व सुन्नह अल खैरिया, विच इज़ लोकेटेड इन यूपी, and there we studied the basics of fiqh, aqidah, and the basics of Arabic grammars and lughat, Arabic adab, and a few things from the hadith, and as well as tafsir. Alhamdulillah, it was a blessing to be a student at the madrasa, and after that, after graduating from madrasa with a fazilat degree, which we call fazilat, I was very fortunate and blessed to be a teacher at a school, and alhamdulillah वहाँ पे 2 साल मैंने प्रॉपर काम किया और इस्लामिक स्टडीज़ बच्चों को पढ़ाया, जिसमें मेरी ड्यूटीज़ इन्वॉल्व थी बेसिक्स ऑफ अक़ीदा, बेसिक्स ऑफ फ़िक़्ह, 5th स्टैंडर्ड से लेके 9th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को, या 4th स्टैंडर्ड से लेके 9th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को पढ़ाना। Alhamdulillah, it was a great experience to be a very young teacher, mashallah, and the students, I still miss them a lot. It was a full of joyful experience, and it was a primary school where I was teaching Islamic studies for about 2.5 years, and then after that, alhamdulillah, it was Allah's plan. Alhamdulillah, I became a student at the Islamic University of Medina. As of today, alhamdulillah, I am a student at the Islamic University of Medina, and there we study the fiqh. I enrolled for the Kulliyah Sharia, which is the Islamic law. Alhamdulillah, it is not less than a dream for many students of knowledge to be a part of this university or institution, especially in Medina, जहाँ पे आप मस्जिद नबवी से बहुत करीब रहते हैं, and you have the access to the great scholars of today. Alhamdulillah. तो ये मेरी एक इल्मी जर्नी रही है अब तक की, and I ask Allah subhanahu wa ta'ala to increase me in knowledge and bless me with the knowledge and keep me among the people of knowledge, ulul ilm.
अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ऐसे लोगों के बीच बड़े होने की तौफीक दे जो साहिब इल्म और बसीरत है. This is little bit of my journey as a student of knowledge, and I am very grateful and thankful to Allah subhanahu wa ta'ala that I was fortunate and blessed to be among these people who study Islam and try to understand the deen. Now when it comes to sharing a few thoughts or a few videos on social media, especially on YouTube, ये एक बहुत अजीब सी जर्नी रही है मेरी. पहले मैं YouTube में वीडियोस बनाया करता था. It was a funny thing that I used to make a few blogs and this and that in those days when I was in madrasa. And that time the blogging thing was very popular. Subhanallah, I still imagine and laugh sometimes that what we used to do खराफाती चीज़ें. लेकिन बाद में जब इस प्लेटफॉर्म की एक पावर और ये जो एक टूल है इसकी जब पावर की रियलाइजेशन होती है तो काफ़ी ज़िम्मेदारी का एहसास भी होता है. फ़र्दर स्टडीज़ के लिए जब मैं टीचिंग का लाइन छोड़ के जब मैं मदीना गया तो वहाँ से एक रियलाइजेशन आई कि वी नीड टू गेट टू दिस प्लेटफॉर्म्स एंड रीच आउट टू पीपल जिनको शायद हमारे कुछ बातें जिनको थोड़ी सी इस्लामिक रिमाइंडर्स जो हम शेयर कर सकते हैं शायद उनको फ़ायदा दें. क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन कि आप लोगों को नसीहत करते रहिए क्योंकि मोमिनों को नसीहत करना या मोमिनों को रिमाइंडर्स देना उनके लिए बेनिफिशियल है, उनके लिए फ़ायदेमंद होता है, उनको बेनिफिट करता है. Subhanallah, that these days the social media it's huge thing. यहाँ पे अगर आप और हम चाहें तो we can build a community where we talk to people in need of ilm. और as a student of knowledge जितना भी knowledge हमें और आपको है जो हम acquire करते हैं उसे share करना it's an obligation to pass out this knowledge to the people, to the generations to come. और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के नेमत में से है कि आप और हम जिन लोगों को भी इल्म सीखने की तौफीक होती है उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस इल्म को आगे तक पहुँचाए. And realizing this, I also started making a few videos and alhamdulillah last Ramadan I made a few videos and published them on YouTube. And mashallah the response I got from the people like you is actually good. लास्ट रमज़ान को जो 3-4 वीडियोस मैंने पब्लिश किए उससे ये मालूम चला कि there is a need, there are people working on this and still there are lots of work that has to be done. So ये सोच के मैंने इस वीडियो बनाने के तरीक़े को शुरू किया है. In these videos, the most important and essential thing for me to touch the topics that are beneficial for the youth as well as all the people in the Muslim community. कुछ ऐसे topics हैं जो कि ज़्यादा broad topic है और जिनके लिए you need to get back to the scholars to understand those topics. But when it comes to sharing the reminders to people, it's one of the easiest thing that we can do. Any hadith or any ayah that we understood properly, we need to share to people, we need to pass out the knowledge to others. And this is what the goal of this channel. I do not aim to bring complex topics to the people जिनको समझने के लिए actually we need to learn from the scholars and we need to understand those contexts of the either verses of the Quran or the issues of the fiqh. तो इन चीज़ों से बल्कि हटके हम जो रिमाइंडर्स है यानी जो हम एक नसीहत और एक तरह से लोगों की जो इस्लाह हम कर सकते हैं इस चैनल के ज़रिए से मेरी एक छोटी सी कोशिश है. अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे इस चीज़ की तौफीक दे. And I genuinely consider this thing as well that I know while making these videos there is a very big possibility that we may come across a few mistakes. अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे नॉलेज को इंक्रीज़ करते रहे और हमें सही नॉलेज अता करे, हमें हक़ को हक़ दिखाए और बातिल को बातिल दिखाए. बट स्टिल
being human we make mistakes. तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि जब वीडियोस को मैं बनाऊं तो किसी कॉन्टेक्स्ट में किसी चीज़ में हो सकता है एज ए स्टूडेंट ऑफ नॉलेज आई मेक मिस्टेक्स एंड इस चीज़ में बस ये है कि अगर किसी कॉन्टेक्स्ट में आपको लगता है कि देयर हैज़ बीन अ मिस्टेक एंड इन द रेफरेंस और एनीथिंग, just quote it and inshallah we will try our best to make the corrections. And in the issues where things might be different between the Muslim Ummah, inshallah हम उस चीज़ को लाने की कोशिश करेंगे जो कि रियल स्कॉलर्स एंड जो कि हमारे अकाबरीन हैं, जो कि हमारे अकाबरीन उलमा हैं, उनसे हम सीखने की कोशिश करेंगे any topic that is complex. Because the thing is, today's generation is not willing to learn from the scholars, and they think that the scholars are limited, not available, or either they are not modern enough. And I genuinely disagree with this. We have scholars जिन्होंने previously वो चीज़ें mention की जो कि आज वाक़ हो रही है. And subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala gave them this vision that what the need of the Muslim Ummah will be in the upcoming days. तो इसलिए इस तरह की चीज़ें हो सकती है, but we always need to get back to the scholars. As Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, that you ask to people of knowledge, the people of ilm, the people of dhikr, which is ilm obviously, अगर आपके पास knowledge नहीं है किसी चीज़ के ताल्लुक़ से. And our end goal will be also the same, to learn from the scholars and to pass out the knowledge that we gain from the scholars by understanding any either it's a small hadith or it's an ayah or it's a part of a fiqhi mas'ala. We will surely learn all of these from the scholars and try to spread the knowledge using this powerful tool which is known as social media, inshallah. अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस चीज़ में हमारी नुसरत व मदद करें. Choosing social media to make the Islamic videos comes with a challenge. कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो हमें दावत देने के लिए वसाइल इख्तियार करने को कहा है, उन चीज़ों में से एक है, लेकिन it's obviously a known thing among the people that the social media is, as of today, there are lots of distraction. तो इसलिए सोशल मीडिया में जब भी हम इस्लामिक कंटेंट को डालें या सुने, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जिनसे भी सुन रहे हैं या जिस तरह से भी नॉलेज को पास आउट कर रहे हैं, हम उस चीज़ की ब्रीफिंग देखें, उस चीज़ को एक प्रॉपर तरीक़े से समझें, चीज़ों को मिस इंटरप्रेट ना करें, और ये एक ज़िम्मेदारियों में से है. So few things that are also important when it comes to the format of the videos and the things. Many people do recommend that we make shorter videos and publish them for the people to spend less time on social media, which is a good thing. लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जब भी हम किसी चीज़ पर बात करें, either it's a reminder, either it's an tafsir of a verse or a tafsir of an hadith, it's really important to understand that we get the full context. तो इंशाल्लाह हमारी इस चैनल के थ्रू जो कोशिश रहेगी वो हर टॉपिक को प्रॉपरली एक कवर करने की कोशिश रहेगी, और साथ में इंशाल्लाह जो शॉर्ट क्लिप्स हैं उसी एक शक्ल में बनाई जाएगी जिससे कि लोगों को समझने में या वीडियोस को देखने में आसानी हो. And as I have shared with you that I myself, as a student of knowledge, it's challenging to make these videos and publish them on a regular basis. So there is no timeline, there is no time fixed for these videos. जब मुझे वक्त मिला करेगा मैं इंशाल्लाह इस चीज़ की पूरी तरह से कोशिश करूँगा. एंड कुछ चीज़ें हो सकती है कि सीजनल भी हो, जैसे कि रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान के ताल्लुक़ से कुछ कवरेज होगा, या ईद आ रही है यानी कि ईद अल-अज़हा तो उसके ताल्लुक़ से कुछ कवरेज होगा. इस तरह से वी विल इंशाल्लाह कीप गोइंग. एंड सबसे अहम चीज़ों में से एक ये चीज़ है कि दीन के इल्म को फैलाना जैसे मेरी भी ज़िम्मेदारी है, आपकी भी ज़िम्मेदारी है.
and we all are obliged with it. And हम तमाम लोगों को इस चीज़ की ज़िम्मेदारी दी गई है, because the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो दीन के इल्म की इशाअत और नशर है वो उलमा की ज़िम्मेदारी है. और एट द सेम टाइम उलमा डज़न्ट मीन दैट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप हदीस जानते हैं बल्लिगू अन्नी वलौ आया, कि अगर आप तक एक आयत भी पहुँची है आप उसको पहुँचाओ. सिर्फ उलमा की ज़िम्मेदारी नहीं है बल्कि आवामुन्नास आप और हम जैसे लोगों की भी ज़िम्मेदारी है. सो वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. एंड इंशाअल्लाह इस चीज़ में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग इस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा, सिर्फ मुझे नहीं बल्कि जितने भी लोग हैं जो कि सोशल मीडिया में अपने आप को ज़ाहिर कर रहे हैं और सोशल मीडिया में दीन के काम के लिए आगे आ रहे हैं, उन लोगों की भी मदद करेंगे और मेरी भी मदद करेंगे. एंड दिस हेल्प कम्स इन द फॉर्म ऑफ कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें. और इस खैर में द थिंग इज़ लेट्स बी अ पार्ट ऑफ दिस खैर टुगेदर. It's not possible for a person to spread the knowledge of this दीन, क्योंकि जो लोगों तक दीन को पहुंचाने का एक जो मायार है हम उसको अचीव नहीं कर सकते. इट्स अ ह्यूज थिंग एंड इसको करना हम तमाम लोगों के लिए ही ज़रूरी है और हम एक दूसरे के इस चीज़ में मुआविन व मददगार बन सकते हैं. जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वल्मुमिनून वल्मुमिनात बादुहुम औलियाउ बाद यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, कि मोमिनीन मर्द और मोमिनीन औरतें जो हैं वो एक दूसरे के मुआविन व मददगार हैं. किन चीज़ों में? यअमुरून बिल मारूफ, लोगों को भलाई के कामों की तरफ बुलाने में, व यनहौना अनिल मुनकर, और ये लोगों को यानी मोमिनीन की सिफ़ात में से है कि ये लोगों को भलाई की दावत देते हैं और बुराई से रोकते हैं. इसी तरह अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कि उससे बेहतर बात किसकी होगी जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के तरफ दावत दी और नेक अमाल किए और कहा कि मैं मुसलमानों में से हूँ. इन सारी चीज़ों से एक चीज़ समझ में आती है दैट वी नीड टू गिव द बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स to spread the message of Allah subhanahu wa ta'ala, either on social media, either on public seminars and conferences and so on. So Allah Rabbul Alameen से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन चीज़ों की तौफीक दे. That's it. That's all about this channel, and inshallah the upcoming videos are in the process, and in a few days we will start publishing regularly. अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इल्म सीखने की तौफीक दे और हम तमाम लोगों के दुनियावी उमूर को आसान करे और हमारे इल्म व अमल में बरकत दे. और अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम तमाम लोगों की इल्म दीन को सीखने में और अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर में मदद करे. अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूह इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.